ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਲਾਈਪੋਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਟੇਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਵਰ ਟੂ ਅਦਿੱਤਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਕਾਲਜਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਕਾਲਜ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਕੈਂਪਸਿਸ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੈਲਫੋਰਡ, ਨੀਪਾਵਿਨ ਐਂਡ ਟਿਸਡੇਲ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸਿਸ ਨੇ ਉਹ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ ਮੈਲਫੋਰਡ ਦਾ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 에어ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਜਰਲੀ 2 에어ਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੈਸਕੇਟੂਨ ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ 에어ਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦਾ है, राइट। देन अपना क्वारंटीन कवर करके पूरा करके सैस्केटून जाता है। उसके बाद बाय रोड सस्कैचुअन मेन एयरपोर्ट है। मेन एयरपोर्ट सैस्केटून में है, लेकिन जो कम्बरलैंड के लिए जो एयरपोर्ट सबसे पास पड़ता है वो है प्रिंस एडवर्ड। ओके, वो कितनी दूरी पे है? वो सेम एयरपोर्ट है अराउंड 40 मिनट्स। ओके। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ 에어ਪੋਰਟ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਆਰ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। राइट। सो कम्बरलैंड कॉलेज 20 साल से भी पुराना कॉलेज है, राइट। पहले ये यूजुअली फॉर पुराने जमानों के जो वहाँ के ट्रू कैनेडियंस हैं उनके लिए एक होटल हुआ करता था। देन 2 होटल्स को इन्होंने कंबाइन करके कॉलेज में कर दिया। अगेन इट्स अ पब्लिक कॉलेज, DLI recognized, so students are like eligible for PGWP in all the courses, right? So I have certificate courses also, I have 1 diploma courses also, right? देन 3 कैंपसेस है जैसे मैंने बताया। एंड जो पहला कोर्स इसमें हम लेकर आ रहे हैं विच इज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। ये तीनों कैंपसेस के बारे में बात कर रहे हो या कोई एक पर्टिकुलर कैंपस है? पर्टिकुलर भी है बट कुछ कोर्सेज हैं जो दो तीनों में भी अवेलेबल तीनों में। अभी हम तीनों कैंपसेस की यहाँ पर बात करेंगे प्रोग्राम्स को लेकर कि कौन से ये प्रोग्राम्स हैं ये तीनों कॉलेजेस में और अवेलेबल है, और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कौन से हैं, कोई ट्रेड कोर्सेज भी हैं? इसमें ज्यादा ट्रेड कोर्सेज नहीं है, मोस्टली हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है। मैनेजमेंट के लिए भी कौन से बैकग्राउंड के बच्चे हों जिन्होंने कॉमर्स एंड आर्ट्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇਸ टॉपिक पे। तो पहला कोर्स है अगेन जैसे मैंने बताया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें जो रिक्वायरमेंट है SGS की है विच इज इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं 6.5 ओवरऑल विद नो लेस देन 6। PT स्कोर भी वी आर एक्सेप्टिंग, दैट इज 63 नो लेस देन 50 एंड इवन डुओलिंगो विच इज 105, राइट। इस कोर्स में बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, राइट। ग्रेड 12 का हम कंसीडर करते हैं और ग्रेड 12 में आपके ओवरऑल एवरेज स्कोर जो होना चाहिए 60% होना चाहिए विद नो सब्जेक्ट लेस देन 50, राइट। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। एंड क्रेडिट ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है दैट इज सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक। तो ये बहुत अच्छी चीज है बच्चे के लिए। बैंड्स इसमें 6.5 होगा, 6.5 विद नो लेस देन 6। 5 के ऊपर कोई भी प्रोग्राम नहीं मिलेगा ये सारे इस कॉलेज में नहीं मिलेगा। ओके। इस तो पहले मैं तो लाइव वीडियोस ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਨਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 6.5 ਹੋਗਾ। उसका भी एक रीजन है क्योंकि ग्लोबली बच्चा हर कल्चर से आता है, राइट। एंड यहाँ पर आपकी जो क्लास साइज है जो हम सीट्स रिक्वायरमेंट है इंडिया से स्पेशली दैट इज वेरी लो, बहुत कम है। तो यही रीजन है कि वो एक क्वालिटी स्टूडेंट चाहते हैं वहाँ पर। एग्जैक्टली। यस। तो बैंड रिक्वायरमेंट ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਹਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। राइट। तो सस्कैचुअन विच इज द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द लैंड ऑफ लिविंग स्काइज, राइट। कहते हैं कि वहाँ की इवनिंग्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। तो बच्चा अगर वहाँ पर फोकसली काम करता है, राइट, तो पढ़ते हुए ही वो 720 आवर्स कंप्लीट कर सकता है। PR के लिए जस्ट चाहिए 960 आवर्स और 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस।
इन एनी फील्ड आपका पार्ट टाइम एक्सपीरियंस और पार्ट टाइम वर्किंग आवर्स भी पीआर के लिए काउंट होते हैं, राइट? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 960 ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਪਲੱਸ 1 ਇਅਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। यस एंड इवन क्या कहते हैं पढ़ते हुए जो बच्चा काम करता है जैसे बोलते हैं पार्ट टाइम करता है वो भी काउंट हो रहा है, दैट टू इन एनी फील्ड, कोई रेलेवेंसी रिक्वायर्ड नहीं है, तो भी बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा वो वाले ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड ऑल्सो यू टॉकिंग Yes, और yes. जो अलग से जो वर्क परमिट्स हैं वो बाद में वो बाद में अलग से वो भी काउंट होगा। वो भी काउंट होगा। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि बच्चा 1 से 11 महीने के अंदर अंदर 960 घंटे बहुत इजीली ऑब्टेन कर लेता है। 720 घंटे तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि बच्चा अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम ले रहा है 8 या 9 महीने का तो 720 घंटे तो वैसे ही कर सकता है, राइट? क्योंकि 80 घंटे बच्चा महीने में काम कर रहा है, 20 घंटा हफ्ते के हिसाब से, तो बहुत इजीली 8 से 9 महीने और 7 महीने में भी अच्छा बच्चा वर्किंग आवर्स ऑब्टेन कर तो लेता है। ये सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी और बच्चे ने जैसे कि प्रोग्राम कौन से करेगा तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? ओके सो जैसे कि इसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, इसमें बच्चा एज अ रिसेप्शनिस्ट, अब बोलते हैं एज अ रिसेप्शनिस्ट रिप्यूटेड शायद ना हो, राइट? ऐसा नहीं है। The whole business, the whole company it relies on the receptionist job because data से related jobs है सारी, data entry, data analysis, profit analysis, right? वो सारा काम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चा करता है, वही काम एम्प्लॉय करता है। Then I have again continuing care assistant, which is बच्चा होम केयर में काम कर सकता है, नर्सिंग होम्स में काम कर सकता है, हॉस्पिटल्स में काम कर सकता है। बहुत सारे रेलेवेंट उनको जो जॉब्स मिलेंगी फिर रेलेवेंट जॉब्स हैं, पॉपुलेशन अभी भी कम है इन स्पेसिफिक जो कम्बरलैंड के जो कैंपसेस है वहाँ पॉपुलेशन कम होने की वजह से पे जो वेज है बहुत हाई है। एवरेज ज्यादा के हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर ज्यादा आईटी से रिलेटेड, वहाँ पर ज्यादा बच्चे को बिजनेस से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब मिलेंगी। सी वहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर एक नो डायरेक्ट फोकस्ड एक सेक्टर है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको मशीन्स भी चाहिए, ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, मैनेज करने के लिए आपको डेटा एंट्रीज चाहिए, राइट? तो हर चीज में रेलेवेंसी है, जॉब रेलेवेंसी बहुत ज्यादा है वहाँ पर। आईटी प्रोग्राम्स नहीं है, आईटी प्रोग्राम्स बिल्कुल नहीं है कि ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ 12th ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ प्रोग्राम्स। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की कम्बरलैंड में ऐसा कोर्स है जो कि 2 इंटेक्स ऑफर कर रहा है, दैट इज सितंबर एंड जनवरी फॉर द नेक्स्ट ईयर। अदरवाइज सितंबर में सॉरी सस्कैचुअन में सितंबर इंटेक ही होता है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ स्टूडेंट सीगा उनको आईटी से रिलेटेड नहीं मिल रहा था ना। कौन से टॉपिक थे ना? घूम गई ना आउट ऑफ ट्रैक जस्ट अ मिनट। तो बातें करते करते स्किप कर गया मेरा पॉइंट है थे, कोई गल नहीं, एनीवेज बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग से चलते रहते हैं ड्यूरिंग द वीडियो के ऐसी सारी चीजें तो कवर करिए। तो इसमें जो बोल रहे हो कि आईटी से रिलेटेड हमें प्रोग्राम्स नहीं मिल रहे हैं। नहीं, इसमें आईटी से रिलेटेड नहीं है, मोस्टली मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और बिजनेस डिप्लोमा जो बिजनेस से रिलेटेड है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली वो कोर्सेज कम्बरलैंड में ऑफर होते हैं। उसमें ट्रेड कोर्सेज भी थे आपने बताए थे। पार्कलैंड में मोस्टली ट्रेड कोर्सेज हैं, 1 साल की सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, देन एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी है एंड 1 पीजी प्रोग्राम एज वेल। इसमें बैंड रिक्वायरमेंट और इसमें फीस। Okay, so for Cumberland it's again 6.5. For office administration is not less than 6. Like PTA score we are accepting that is 63, no less than 50. For continuing care assistant requirement is same, right? बच्चे के ग्रेड 12 में भी 60 एवरेज स्कोर होना चाहिए, 60% होने चाहिए with no subject less than 50, right? PT score is again same. जो क्रेडिट ग्रेडिंग इंस्टीट्यूट है दैट इज सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक। ग्रेड स्टूडेंट्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं बट आपको डेफिनेटली क्योंकि जैसे आपने बताया कनाडा जो एसओपी डायरेक्टेड नेशन है, राइट? तो आपको एसओपी पे ज्यादा उस पे काम करना चाहिए। एसओपी पे कर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम 1 ईयर का प्रोग्राम। यस, इट इज बिकॉज़ इट्स दैट्स अ 1 ईयर प्रोग्राम एंड मास्टर्स के बाद सर्टिफिकेट करना यू नो कि चांसेस उसके क्या होते हैं। तो मैं तो रेकमेंड भी नहीं करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, सिर्फ यूजी के लिए करती हूँ और अच्छे
प्रोग्राम्स आपने जैसे बताए हैं, अभी आईटी में नहीं मिलेंगे हमें, बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे कॉलेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ आईटी ਜਿਹੜੀ बड़ी इजीली बच्चे ਨੂੰ मिल जाती, बच्चे बड़े खुश होंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी मुझे कुछ खास प्रोग्राम्स बताओ। ओके, सो इस कॉलेज में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, which was I would say एग्रीकल्चर साइंसेज प्रोग्राम, अच्छा, बट उसमें जुलाई इंटेक था एंड जुलाई इंटेक इज क्लोज्ड, राइट? तो अभी हम वो प्रमोट उतना नहीं कर सकते एंड उस कोर्स में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट और साथ ही साथ हो गया अच्छा। मुझे एक चीज और अभी याद आई जो हम लोग बीच में स्किप कर रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया था बातें करते हुए। जो वो 2 कॉलेजेस थे उसमें हमने बोला था कि हमारे सितंबर इंटेक है और इसमें 2 इंटेक्स हैं। इसमें एक्चुअली 3 इंटेक्स हैं। 3 इंटेक्स हैं, ये Right. बताना जरा मेरे ऑडियंस को यहाँ। यस, सो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो सबसे पहला प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें सितंबर भी है, जनवरी इंटेक फॉर द नेक्स्ट 2022 के लिए जनवरी इंटेक 2 भी है, इंटेक्स हो गए ना उसमें 2 इंटेक्स हैं। ओके, फॉर कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट उसमें एक ही इंटेक है सितंबर का। देन तीसरे कोर्स की हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर साइंसेज का, उसमें जुलाई इंटेक था। जुलाई इंटेक, यस, अभी वो हो गया, उसमें अभी सितंबर इंटेक नहीं है। रीजन क्योंकि एग्रीकल्चर वहां पर इन्हीं सीजन में होती है, राइट? जैसे मैंने बताया वीट की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, तो गर्मियों में दैट इज व्हाई इसमें प्रैक्टिकल को प्रोग्राम भी था, राइट? दैट इज व्हाई इसका जुलाई इंटेक था। बट खेतीबाड़ी के अकॉर्डिंग वो मंथ उन्होंने सिलेक्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल काम भी हो जाएगा। एग्जैक्टली कितने दिन कॉलेज होगा ये? 5 डेज है, 5 डेज, तीनों कॉलेज। तीनों कॉलेजेस 5 डेज है। ओके, फिलहाल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ में मिलेगी? इसका अभी जो ऑफर लेटर का टैग है दैट इज मिनिमम 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स एंड जो एप्लीकेशन फीस है कॉलेज की दैट इज $140, $140। no fee waiver no fee waiver at all। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕਸ ਹੋਣਗੇ। 3 तरह के, किसी में जुलाई है, किसी में सितंबर है, किसी में जैन है। देन अगेन इसमें हेल्थ केयर मेडिकल, स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे पास एक कोर्स है, एक प्रोग्राम है दैट इज डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर, जो कि जीएनएम और मेडिकल स्टूडेंट के लिए, इट्स नॉट फॉर द आर्ट्स स्टूडेंट, राइट? इसमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए दैट इज एसडीएस केसेस ओनली, 6.5 नो लेस देन 6, पीटी स्कोर वी आर एक्सेप्टिंग 58 नो लेस देन 50। अगर बीएससी नर्सिंग करी तो क्या चांसेस होंगे इसमें? बहुत ज्यादा अच्छा चांसेस है। इवन इन सर्टिफिकेट कोर्स ही बच्चा को ये लगता है कि अगर वो बीएससी करके या इवन 12th के बाद भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेता है तो उसका वीजा रिजेक्ट ना हो जाएगी। बिल्कुल। सी सर्टिफिकेट प्रोग्राम की वजह से कभी वीजा रिजेक्ट नहीं होता है, आपके आईएएस के स्कोर की वजह से और आपकी एसओपी की वजह से। और मेरी इंटेंशन हमने बतानी है कि हमने ये Exactly. करना क्यों है, इसका रीजन क्या है। एक बार आप रीजन जस्टिफाई कर दो, आपका वीजा 100% आएगा। लेकिन ऑब्वियसली एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आपका 100% वीजा सक्सेस रेशियो है, नहीं, सैस्कैचुअन में वो नहीं है, राइट? चांसेस होते हैं हर वीजा स्टैंपिंग में, तो यहाँ पर है कि हाँ अगर आप रेलेवेंट स्टडी आपकी पहले से रही है और आपकी एसओपी बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीजा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड फिटनेस टॉपिक पे आना हो, कौन से प्रोग्राम? इस कॉलेज में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक ही था, दैट इज एग्रीकल्चर साइंसेज प्रोग्राम। उसमें मैथमेटिक्स की रिक्वायर्ड है 50%, एवरेज स्कोर जो चाहिए ग्रेड 12 में दैट वाज 60% विद नो सब्जेक्ट लेस देन 50। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੇक्स ਨੇ, सारी डिटेल्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ मिल जाएंगे। अभी हम फीस स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करें। अभी एक्चुअली एक और कोर्स है जो कि ओनली डिप्लोमा कोर्स है कपललैंड में, दैट इज जनरल बिजनेस मैनेजमेंट, Okay. जिसमें बच्चा पढ़ता है मार्केटिंग के बारे में, सेल्स, एचआर, एवरीथिंग सारी चीजें एवरीथिंग हो गया ना, बहुत सारा। एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस। 2 साल का प्रोग्राम है, ओनली फॉर एसडीएस केसेस, राइट? 6.5 नो लेस देन 6। देन पीटीई की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 58 नो लेस देन 50। +2 बच्चों के लिए क्या ग्रेजुएट क्या मास्टर? दिस इज फॉर +2, राइट? अब इसमें बच्चे के पास मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। ओके, बच्चा क्या जो कंसिडरेशन रहेगी, स्टैट्स की कंसिडरेशन रहेगी बट नॉट अकाउंटेंसी कंसिडर नहीं होगा। और परसेंटेज जो एवरेज चाहिए अगेन 60% होने चाहिए बच्चे के। 60 ओवरऑल और नॉट लेस देन 50 in each, yes। और ओपन बोर्ड के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होंगे? बिल्कुल वो भी अप्लाई कर सकते हैं। भले उनकी डिग्री जो ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी इस तरह के जो ओपन बोर्ड ਨੂੰ नहीं ਲੈਂਦੇ, बहुत मतलब ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। और सबसे अच्छी चीज सस्कैचुअन के बारे में कहूँ कि बच्चा इवेंचुअली जिस लिए जाता है सेटल होने के लिए,
सस्कैचुअन ही एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ सेटल होना आज की डेट में बहुत इजी है। बहुत एक साल के अंदर अंदर बच्चा अपनी पीआर के लिए एलिजिबल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 960 वर्किंग आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको और 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि बच्चा पढ़ाई करते करते बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकता है, राइट। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है स्टूडेंट के तो पास। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਬਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਲਜਿਸ ਮੈਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਅੱਜ ਕਿ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਆਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਹਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ कराओ कि अपना वीजा लो। कोई चीज और अगर एक चीज है ट्यूशन फी को लेकर, सारे कोर्सेज की जो इस कॉलेज में ट्यूशन फीस है दैट इज 18,000। 18,000 Yes, अच्छा, सारे ये भी है, हाँ, सारे। इसमें Flat फ्लैट 18,000 है सब फॉर ऑल द कोर्सेज। ਫॉर ਆਲ ਦੀ ਕੋਰਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ $18,000 ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ 1 ਈਅਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1 ਈਅਰ ਦੀ ਹੈ। 1 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲਜਿਸ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਹਾਈ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਵੇਸ ਆਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਟੂ ਗਾਈਡ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਸੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕਸ। थैंक यू।